right? Sometimes it's not going to refresh well, but there you go. That looks awesome, right? That looks really, really nice, right? So this is the annoying thing. It's a very good question, actually. Does the autocomplete work for Tailwind? So that's the only thing I'll say it doesn't work when you're doing React Native, unless you found an extension that I didn't, right? But overall, yeah, that's what I found. Okay, so this looks pretty good at this point. So that's pretty sick. Now, when I click get a ride, I want it to shift me over to another screen. And that screen we actually provide over here. So map screen is this case, right? So the first step is I'm going to create the map screen itself. So that way we have something to shift over. Then I'm going to implement something called React Native Navigation, which will actually allow us to have that screen switching. And you know that really nice kind of swipe back functionality, or on Android you have the back button. All of that stuff will work once we implement this. So get ready for that, okay? Smash the thumbs up button if you enjoying this, right? Still have 500 people, 1,000 people watching right now. That's sick. Let's keep going, guys. So Command B, gonna go to my screens, and then here I'm gonna go ahead and say map screen. Right, so I'm gonna do map screen.js, React Native functional export with style sheet, boom, right? And then here I'll say here is the map stuff, ... save. Okay, so we got the map screen over here. And then what we're going to do is I'm actually going to have, so right now in app.js, we only render a home screen, right? So how do we have, you know, two screens? How does that work? And how do we do all this sort of navigation stuff? So we're going to use something called React Native Navigation. This is an awesome library that allows us to do our navigation for our React Native apps. So you can go ahead and read the docs. And again, I'm showing you this because it's going to be handy for you to go ahead and do it in your journey and go ahead and, you know, research and see how I'm doing this stuff. And I think that's going to help you out quite a lot, right? So let's keep on going, guys. And remember, if it's kind of hard for you, second link, React Basics 101 from Skillshare for free. It'll help you get up to scratch, and then you can come back to this build. So I'm going to click yarn add React Navigation native. Come back here, Command J, Command B to hide that annoying sidebar. Let's do that now. Command J, Command B, and then second terminal, and I'm going to do yarn add React Navigation native. Okay. Aditya, what's up, dude? Now, what we're going to do is we have to install a few other things, right? So in this case, you see, this is interesting here. So Expo install, not yarn add or yarn install. This means that Expo is going to do a bunch of more kind of complicated installs. And as I mentioned before, Expo is awesome because it will handle the iOS dependencies and Android. And all we do is do Expo install, right? We have to handle all this other stuff, which if you've done React Native CLI stuff, you know what I'm talking about. Expo simplifies it. So I'm going to click copy here. Go over to my code and paste that. You can see Expo install, and there's a bunch of different, when it has a space, it's installing more than one dependency. So these are all the things that we need to allow us to get, you know, our React Native navigation working. Okay. Karthik says, I like how you say native. Delcio is, this guy is awesome. Thank you so much, dude. Appreciate you. If you're new to the channel, let me know right now. Love to see who's watching for the first time. Okay. So we got this up and running, and we got that working pretty good. We've done all of this stuff. Now I'm going to go ahead and I need to import this into my app.js file to get everything loaded in the way I need it. So go back over to our file, pop this in at the top, gesture handler. चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार अभी नहीं इंतजार हो सकता सर शुरू करें सर इस तरह नहीं होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं इस्लामाबाद की अदालत के सामने और जो फैसला आया है वजीर आज़म इमरान खान का जो इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से वो जज साहब ने मंजूर नहीं किया। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको
वेपनाइज किया गया और सज़ा आज मुअत्तल नहीं हुई, इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक मैं ये कह दूँ कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है, उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने बरमला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे ये मैं अभी फिर कहता चलूँ कि इस वक्त आलिया हमजा साहिबा की 17 और 18 साला बेटियों के मोबाइल फोन लेके उनके फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 45-46 डिग्री की गर्मी में जेल की वैन में बिठाया जाता है, उनको फैसिलिटीज हमारे कैदियों को नहीं दी जा रही। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, इसकी मुज़ामत करते हैं। और ये भी मैं कहता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। बहुत शुक्रिया कबल साहिबा। एक सेकंड भाई, हमारे साथी खामोश, आगे हो। आज इस अदालत ने ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल किया, अवाम जो इंसाफ लेने आई थी, बिलखसूस पाकिस्तान की 52% आबादी जो खवातीन पे मुश्तमिल है, उनको इन्होंने बुनियादी हकूक, उनकी जो गैरत और इज्जत वाली बातें हैं, उनको उछाला है इस अदालत में। उसकी प्रोटेक्शन करने में यह अदालत नाकाम रही है। 46-48 डिग्री टेम्परेचर में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को इस 2 नंबर घटिया जाली केस में अंदर बंद किया गया है। मैं यहाँ पे आप सबकी करेक्शन कर दूं, जब आप इस केस को स्टडी करें तो पता ये चलता है कि असल में तो इद्दत का भी मामला नहीं है। असल में कहा जा रहा है कि ये शादी करके फ्रॉड किया गया है। पूछना ये है कि किससे फ्रॉड किया गया है। जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि मियां बीवी का मामला है, ये कोई केस ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कल वो राना सनाउल्लाह बयान कर रहा था कि कोई ना कोई लेफ्ट राइट का केस करके हम इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे। ये इमरान खान को निशाने पर लाने की वजह से आज बुशरा बीबी की इज्जत को, उन एक बापर्दा खातून की हुर्मत को इधर उछालने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए, इज्जो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। ये वो लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स गिरते थे, जिनके किडनीज फेल होते थे, जिनको दिल के 4-4 दौरे लगते थे, लेकिन आज इमरान खान को 6/8 के डेथ सेल में रखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने मुल्क और अवाम की हकीकी आजादी के अलावा कोई बात नहीं की है। बुशरा बीबी ने ये सारी तकलीफें, परेशानियां इस कौम के लिए और अपने खामिद का साथ देने के लिए, हक के लिए और हकीकी आजादी और कौम की फलाह के लिए जो है इसको वो बर्दाश्त करी है। लेकिन अवाम को सिर्फ बताना चाहती हूँ, हम तहरीक इंसाफ वाले हैं, हम आइन और कानून की पाबंदी करते हैं। हम पे आप झूठे मुकदमे करते हैं। आज ATC अदालत से आए हैं सरगोदा से, हमें आपने 780 लगाई हैं, हम पे आप दहशतगर्दी के मुकदमे करते हैं। लेकिन हम वो वाहिद जमात है जो डंडे सोटे लेके नहीं चढ़ते। आइन की और कानून की जंग, आइन और कानून की हदूदों के यूथ में रह के करते हैं। हमने फिर भी हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने अदालतों के साथ कानूनी चाराजोई की है। आज इमरान खान पे कोई केस नहीं है। इंशाल्लाह इस केस को भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी आइन और इसी कानून के मुताबिक पूरा हल कराएंगे और इंशाल्लाह हमारा लीडर सुरखरू होगा, बुशरा बीबी सुरखरू होंगी और ये खुद
उनको ये प्रोटोकॉल में खुद भेजेंगे, क्योंकि वो इस मुल्क का इस वक्त भी फॉर्म 45 पे हकीकी वजीर आजम भी इमरान खान है, और सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात, और इस वक्त असेंबली में जो असल में नुमाइंदगी बनती है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। वजीर आजम इमरान खान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी धरने में चाहिए, रोडू में क्यों नहीं आते? निकाल देना, रोडू में क्यों नहीं आते? निकाल दे, खत्म कर इसको। करें नहीं इस वक्त करें इसलिए हमसे सर शुरू करें क्या बहन जरा